sort of the underlying basis of this entire story is emotion. I could have been in the Air Force or in the Army or whatever and been away from loved ones for 17 years. And the whole issue is that you've been away for 17 years, you've hoped and prayed that one day you're going to come back, and you come back and life is not what you thought it would be. And I think to that extent, the emotion is very universal. It doesn't really matter that I was an Air Force officer the day I got captured. So I think for me personally, the work that has gone into this role has been in that space. I mean, the frills, of course, you come back after 17 years, you should look like somebody who's been in a prison for 17 years, that sort of stuff, but that apart. But I think the hard work has gone in terms of just getting the sort of, the range of, your emotional palette right for the sort of situation that you find yourself in. At least that's for me. I think that's what I've worked harder on for my part. But I think Satyadeep has pretty much summed it up. How do you put yourself in somebody's shoes for something that you have never experienced and probably never will? It's impossible. Even if you speak with them or whatever, the fact of the matter is, how do you feel that? And the only way I figured, which I always figure in everything that I do, is to stay as honest as possible, to stay as committed to that character as possible. And in fact, I often tell Nikhil that I'm going to go crazy after this show because, I go back home and I can't shed Na's name. I mean, it's crazy. I go back and I really don't know how to lose this woman. And it just kind of, and every day I feel the pain just multiplies and multiplies and multiplies. And somehow you keep tapping in deeper and deeper and deeper. And that's the only thing you can do. And the good thing is that we have Nikhil Advani, who's so averse to bullshit. He just calls it. He calls it. If you've done something, and I like that. He pushes you so much. He pushes you so damn much without really pushing you. But because he's such an achiever, he's constantly making you go in deeper. He never really tells me how to act on set, but he'll come and tell me that one thing that'll just hit the spot. And that's when you need someone like that, So he makes sure that you're not hamming. He makes sure that you're not taking the easy way out, because this man never takes the easy way out. So, all of that also really works. And I have actors who are honest. And that's a huge plus. When your co-actors are honest, when you have writers who are writing it the way one must feel it, ultimately it's a TV show. Ultimately it's something that you guys are going to see, and it takes a whole damn team to do it. So it's all there, and all we can do is just stay committed to what the complete honest portrayal of putting yourself in that person's shoes as much as possible every single day, going deeper into that person that you're playing. And that's all I can say. I know it sounds like a whole lot of bullshit, but it's the truth. I just want to, I'm not the cast, but I'll still answer that question. So yeah, to answer your question about them meeting wives who have suffered the same fate, they couldn't have met POWs, because then you're not a POW. You're not missing in action, sorry. So basically, I made it a point to tell them, that I don't want you guys to be reading a lot of the stuff, because then it starts becoming imitative. Then you want to live other people's lives. We are very fortunate, like I said earlier, we've got very good writers on the show. Asim and Anirudh, who've been with me on writing the show from the very beginning, read so much actually, that each scene that we get and each moment that we have in the show is somewhere or the other reflecting what they've read. And they've read a lot about there are 54 POWs right now since 1971. And it sounds very little, 54, because that's reported. We don't know the others. And this is a country that does not actually have, you don't have the ability to go and say something, right? And to answer your question, sir, about closure, in fact, one of the stories we read was about this wife who said that for the first period, you are just hoping that the men don't come
with the news that he's died. You're just praying every single day that he's not died. But after a while, you pray that they come. And you're just praying that you get the news that they've died. Right? So that's what you're saying. Everybody is actually just waiting for something that is going to allow them to start living again. Otherwise, you're just living, in a kind of limbo. So the most important thing that Sandhya said, which is that the only thing we strive for in every scene is honesty. Ladies and gentlemen, let me remind you, it's Double Red Pace presents POW Bandi Yuddh. It's dry day today, but thank you very much. All right, ladies and gentlemen. इमोशनल एक तरीका है उसे डिस्क्राइब करना, लेकिन बहुत सारे इमोशंस आते हैं इस कैरेक्टर को प्ले करके, और बहुत भारी कैरेक्टर है। और रोज़ जब मैं निकलता हूँ स्टूडियो से तो कुछ मजाकी चीज़ें करनी पड़ती है ताकि ये इसको छोड़ दूँ कमालिस्तान स्टूडियो में, उसको निकल के घर आ जाऊँ अपने फैमिली के साथ। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, बहुत इमोशनल होता हूँ मैं। इमोशनल कैरेक्टर है, बहुत लेयर्स है इस कैरेक्टर में, और एक भारी सी फीलिंग रोज़ आ जाता है इसको प्ले करके, इसको निभाते हुए। तो जी आप सही बोल रहे हैं कि बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर है। ओके, पूरा इस तरह का शो कभी आया नहीं है ना। अमूमन हम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम सास बहू और ये सब देखते आए हैं, एक अलग तरह की कोशिश है। इस कोशिश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और क्या आपको लगता है कि काफ़ी देर हुई इस तरह के सब्जेक्ट को चुनने में, छूने में? खैर मैं अगर मैं एक ऑडियंस के हिसाब से अगर बात करूँ कि मैं खुद एक ऑडियंस हूँ, तो मेरे ख्याल से जी हाँ बिल्कुल देर हो गई है। बहुत सालों से हम एक ही तरीके के शोज़ देख रहे हैं, और इस जो फॉर्मेट है हमारे टेलीविज़न पे, इसने भी सेट किया है स्टार प्लस ने। अगर आप देखा जाए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जो पहली ऐसी सास बहू टाइप शो थी जो फीमेल ऑडियंस पे एकदम फोकस था। वेल, फीमेल ऑडियंस हमारे इस देश में बहुत टीवी देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियंस है, और शोज़ ज़्यादातर उनके लिए बनते हैं। लेकिन उनकी भी सोच को थोड़ा चेंज करना, उनको नई चीज़ दिखाना, आई थिंक ये एक अटेम्प्ट है एक नया कॉन्सेप्ट का, और ये भी रिस्क स्टार प्लस ही ले रहा है, तो एक अच्छा ही बहुत डेयरिंग बात है। और अगर आपके रिएक्शन देखा जाए कि आप प्रेस वाले हैं, आपके थ्रू लोगों तक बात पहुंचती है। मैंने देखा है कि ज़्यादातर मीडिया के लोग बहुत इम्प्रेस हुए ट्रेलर्स को देख के, स्टोरीज़ को देख के, कॉन्सेप्ट के बारे में सुन के। तो मेरे ख्याल से ये एक्साइटमेंट जो आपको हो रहा है आगे ऑडियंस के पास जाएगी, वो एक्साइटेड हो जाएंगे शो के बारे में, और फिर हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। हम चाहते हैं कि ये ट्रेंड हो जाए, ये शो पॉपुलर हो जाए। ओके, पूरा कई बार ऐसा होता है कि बड़ी फिल्मों की अगर मैं बात करूँ या मैं छोटे पर्दे की बात करूँ, कुछ किरदार अमर हो जाते हैं। जब मैं सर्कस की या मैं शाहरुख की बात करूँ, क्या आपको इस बात की एक फील है कि वो लार्जर देन लाइफ हो गए? हालांकि छोटे पर्दे पे किया गया, लेकिन वो किरदार अमर हो जाते हैं। डू यू फील व्हाइल वर्किंग ऑन इट, स्पेशली विद 18 साल पहले डायरेक्टर लाइक निखिल अडवाणी? 18 साल पहले मैंने एक शो किया था हिबेपुरे नाम का, आज तक मुझे लोग नज़र बुलाते हैं, और मेरे ख्याल से ये शो के बाद लोग अब मुझे सरताज बुलाएंगे। उस शो और इस शो के बीच में मैंने बहुत सारे फिल्में किए, उसमें शायद 2 नाम टिके हुए, एक मुन्ना था आवारापन से, और दूसरा केडी जो रॉक ऑन का है, और शायद इब्राहिम जो अभी एयरलिफ्ट में आपने अगर देखी होगी तो उसमें निभाया है इब्राहिम का कैरेक्टर, वो भी थोड़ा पॉपुलर हो गया था। लेकिन जब एक शो किसी के घर पे जाता है रोज़, तो डेफिनेटली लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस कैरेक्टर को पसंद करें तो अमर हो जाएगा वो कैरेक्टर, लार्जर देन लाइफ हो जाएगा। और वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर रोज़ आपके साथ डिनर टाइम पे आपकी टेबल पे बैठ के खाना खाएगा, तो मतलब लोग के दिमाग में वो रह जाती है बात। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि निखिल के साथ आप बहुत काम कर चुके हैं, खास बॉन्डिंग भी शेयर करते हैं निखिल अडवाणी के साथ, कैसा एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का? और एक अलग उनके लिए भी एक चैलेंज होगा यकीन, छोटे पर्दे के लिए कुछ करना। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स टू ऑन अ ग्रैंड लेवल, फिल्म का फील आता है जब आप टीजर देखें, आप प्रोमो देखें, इतना प्रॉमिसिंग लगता है सब कुछ। शुरुआत में तो मुझे खुद को भी लगा था कि शायद कोई फिल्म आएगी। एक तो बात आपने बिल्कुल सही की कि एक फिल्म डायरेक्टर जब एक टीवी शो को हाथ में लेते तो उसे एक फिल्म जैसे ही प्रेजेंट करते, और निखिल के लिए ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो कुछ फ़र्क नहीं देखते हैं शूटिंग के स्टाइल में, जिस तरह से वो पिक्चर बनाते हैं। मैंने वैसे काम नहीं किया उनके साथ पिक्चर पे, टीवी पे ही काम किया, लेकिन मैं यकीन के कह सकता हूँ कि वही जितना डिटर्मिनेशन, जितना
इंटरेस्ट, जितना कंसंट्रेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये इस यूनिट को, इस शो को हैंडल करते हैं। हम सारे एक्टर्स, सारे टेक्नीशियन, सारे क्रू जो इस शो पे काम करते हैं को इंस्पायर करते हैं रोज़, एवरी डे। अगर आप हमारे सेट के में आए 10 और 11 के बीच में, निखिल अडवाणी की आवाज़ गूंजती है उसमें। और दोनों सेट पे, हमारा ए यूनिट चलता है, बी यूनिट चलता है, तो दोनों बाजू साइड बाय साइड है, और उनकी आवाज़ से पता चलता है कि भाई इंजन स्टार्ट हो रही है आज। तो ही चार्जेस अप एवरी डे। हमें एक ट्रैक पे रखते हैं, और हमें कभी फील नहीं कर लेते कि 100 दिन निकल गए भाई। वही एनर्जी से काम कराते हैं, वही एनर्जी हम में डालते हैं, और इसका जो रिज़ल्ट है, हम भी जब एपिसोड्स देखते हैं एडिट रूम में जाके देखते कि भाई एपिसोड 40 में मैंने ये थोड़ा सा एक्शन सीक्वेंस किया है, कैसा लग रहा है। और जब जाके देखते बोलता वाओ, ये तो पिक्चर ही लग रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ द मैजिक ऑफ निखिल अडवाणी दैट यू गोइंग टू सी ऑन टेलीविजन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपसे ये जानना चाहूँगा, कैसे आया ये आइडिया? दो यू हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट द स्टेज, बट स्टिल वांट टू नो कि क्या खास आपको लगा, यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट और यू केम ऑन। मुझे लगता था कि मुझे लव स्टोरीज़ बनानी चाहिए, मुझे उस किस्म की लव स्टोरीज़ बनानी चाहिए जिससे मैं जाना चाहता हूँ। कलो ना हो, सलाम इश्क। फिर उसके बाद मैंने एक फ़िल्म बनाई डी-डे। मैंने डी-डे तब बनाई जब मेरे पास कुछ नहीं था और बनाने के लिए। मेरे बाकी उसके पहले वाले फिल्म्स ठीक से चले नहीं, तो आई वॉज इन अ सिचुएशन कि मतलब यार देयर इज़ नथिंग टू लूज़, मैं बना देता हूँ। और लोगों को काफ़ी मतलब समझ में नहीं आया कि कलोना के डायरेक्टर ने ये डी-डे कैसे बनाया। मुझे उस टाइम पे समझ में आया कि यार दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू से द मोस्ट। जैसे ये इस किस्म की कहानी जहाँ पे रॉ एस्पियोनाज, ह्यूमन इमोशंस के साथ जुड़ सकती है। उनकी मतलब हम क्यों सोचते हैं कि एक स्पाई जो है या एक जो सोल्जर जो है उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि देश को बचाना। उनके लाइफ में क्या होता है, बाकी सब क्या होता है। तो मुझे समझ में आ गया दैट्स समथिंग दैट आई लाइक। उसके बाद मुझे एक मौका मिला एयरलिफ्ट प्रोड्यूस करने का, और आई गेस लोग मुझे उस फर्दर पता चल गया कि यार दिस इज़ एग्जैक्टली द काइंड ऑफ सिनेमा दैट आई डू वेल, और द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट मैं ठीक से बता सकता हूँ। मेरी दिलचस्पी है इसमें। तो जब स्टार के जो सीनियर मैनेजमेंट है, उन्होंने डी-डे देखा, दे केम टू मी, दे सेड एक शो है, आप क्यों नहीं देखते हो। मैंने बोला कि यार हाथू फिल्म होमलैंड बन चुकी है, मुझे नहीं बनाना है, मुझे क्योंकि हमेशा उसके कंपैरिजन में होगा हमारे पास उसके बजट्स नहीं है होमलैंड जैसी शो बनाने के लिए, तो मुझे नहीं बनाना है। उन्होंने कहा कि यार देख लो। जब मैंने देखा हाथू फिल्म, मैं थोड़ा दंग हो गया। मैं थोड़ा कि फिल्म जैसे मैंने कहा है, इट्स अबाउट प्रिजनर्स ऑफ वॉर, बट रियल प्रिजनर्स जो है वो उनकी बीवियाँ, उनकी फैमिलीज़ की कहानी है। और एक बड़ा सा एक षड्यंत्र है, एक प्लॉट है, एक सस्पेंस चल रहा है, एक थ्रिल चल रहा है, बट एट द कोर जो है वो जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि इन बीवियों को, इन फैमिलीज़ को क्लोजर मिला है कि नहीं, और उनके साथ अभी क्या होने वाला और क्या हो रहा है। तो मैं शो देख के मैं पागल हो गया। मैंने बोला कि मुझे ये करना ही है, और वी रीच द स्टेज। Okay, you know, with all due respect,